Sri T.K. Rangarajan, your party has 7 minutes and 2 speakers. Thank you, sir. Thank you. Sir, the Citizenship Amendment Bill is anti-constitution, illegal and immoral. On behalf of the Communist Party of India, Marxist, I oppose the bill tooth and nail. It was sent to Joint Parliamentary Committee for 3 years. It was a farce. Derek also was a member of that. They have never visited either Bengal or Tripura, Jharkhand, Orissa, Andaman, never visited. The CAB stated objective to get shelter to the protection of prosecuted minorities is laudable. The text of the bill, however, not only undermine that objective, but also render plural fabric Indian constitution. Sir, it is careful listing the protected communities. It is exactly internationally leave out Muslims. The message, discrimination, exclusion, the second-class citizenship based on religion. This justification is faulty. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Muslim majority countries, by definition, where Muslim cannot be prosecuted, this is false. Home Minister must understand that is false. The Ahmadiyya community in Pakistan has been subject to continuous discrimination and violence. They have come here. Now you also exclude them. There are a number of countries surrounding India have unleashed the terrible violence upon minorities. Rohingya Muslim minorities in ethnic cleansing and genocide in Myanmar. Sri Lanka does the same. It's a Buddhist state, please remember. Sri Lankan government, how they treat Tamils, why our Prime Minister, our Foreign Minister goes there for a discussion when new President was elected, why Tamils are afraid there? Sir, in Tamil Nadu, in 24 districts, 2,000 camps are there for the past 35 years. Another 3 to 4 camps in Orissa. They have their own grandchildren there. That is a pathetic thing. Still they are in the camps. Sir, I want citizenship to everybody. People suffering because my amendment in this bill to all neighboring countries, there should not be any religion. Sir, that citizenship amendment bill based on religion, this is clearly unconstitutional, as religion can never form the basis of the state of a nation. Where you are going abroad, you are also called Vasudeva Kudumbam. But when you are in India, you are narrowed down the majority communalist. This is your basic politics and ultimately ruin the country and our secular credentials. Sir, I would like to draw your attention in SR. तो नाज़रीन आपको बताएं कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर लगातार बहस जो है वो जारी है और दिल्ली से हमारे साथी अनूप गुप्ता मौजूद हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में ये जो बिल पेश किया जा रहा है इस पर लगातार बहस जारी है, गर्मा गर्मी जो है वो भी लगातार देखने में आ रही है। आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिशियन से आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन रहा है अभी तक? देखिए, नागरिकता संशोधन बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है और पेश करते वक्त ही उन्होंने साफ कर दिया कि कई तरह की भ्रांतियां और कई तरह की भ्रम इस बिल को लेकर के समाज में फैलाए जा रहे हैं, देश में फैलाए जा रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि जिनके मन में जो भी सवाल है इस बिल को लेकर के, एक भ्रम का सवाल है, वो सवाल कर सकते हैं। उन सारे सवालों का जवाब सरकार की तरफ से दी जाएगी। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये बताने में कामयाब हो रही है कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अधिकार को छीनता है। तो ये एक तरह से वहाँ पर चर्चा का जो दौर है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लोकसभा में पास कराया गया, जिस तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी से पास कराया गया, ऐसी कंफर्टेबल मेजॉरिटी राज्यसभा में तो नहीं है, लेकिन सरकार आश्वस्त है कि वो आसानी से यहाँ पर भी बिल को पास करा लेंगे। 100
16 का आंकड़ा है AIADMK और NDA घटक दलों की सभी पार्टियों की संख्या को अगर जोड़ ले तो ऐसे में 6-7 और वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजू जनता दल जो कि लोकसभा में इस बिल का समर्थन उन्होंने किया था, अगर इस बिल का समर्थन राज्यसभा में भी अगर वो करते हैं तो ये बिल सरकार आसानी से राज्यसभा में भी पास करा लेगी। जी अनूप, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसी को इस बिल से डरने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, और अपनी इस बात के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर दिए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, देश में एक भ्रम की स्थिति ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इससे जो मुसलमान हैं उनके हितों की अनदेखी की गई है और उसकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों की हितों और उनकी नागरिकता से इस बिल को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बिल है, ये बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में आए हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने की बात कह रही है। इसमें मुसलमानों की हितों की अनदेखी कहाँ से की जाती है? क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जब बंटवारा हुआ था उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट किया गया था और उस वक्त ये दोनों देशों की तरफ से कहा गया था कि उनके यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा की जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 90% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या में कमी आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। यानी वो जो 90% कमी आई है वो आखिर क्या हुआ? हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी गई हो, या हो सकता है कि उनको प्रताड़ित किया गया हो जिसकी वजह से वो भारत पलायन करने में मजबूर हो गए हो, या उनका कन्वर्जन हुआ हो। ऐसे हालात में जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं या सिंधी हैं, वो वर्ग के लोग प्रताड़ित होकर के वहाँ से प्रताड़ना झेलकर अगर वो देश आते हैं तो उन्हें अधिकार देने में आखिर दिक्कत क्या हो रही है, इसमें क्या किसी को परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जब बंटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान अब इस्लामिक कंट्री है, ये बात सभी को पता है। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, सभी को पता है। ऐसे में कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर भारत में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उनकी नागरिकता की बात किसी भी तरीके से नहीं कही जा रही है। दूसरी बात, जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, देखिए, दूसरे देश से कोई नागरिक, दूसरा देश का कोई नागरिक अगर भारत में आता है तो उसकी नागरिकता लेने की एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है। अदनान सामी, आपको मालूम है कि बहुत ही देश के प्रख्यात जो है वो सिंगर है, उनको एक प्रक्रिया के तहत यहाँ की नागरिकता दी गई है। तो उस तरह की नागरिकता किसी भी वर्ग के लोगों को दी जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये जो बिल है वो केवल उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हैं और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको नागरिकता और अधिकार दी जा रही है। जी, तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा में जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो इस बिल के खिलाफ भी खड़ी हैं। कांग्रेस का अगर हम स्टैंड की बात करें तो लगातार यही रहा है कि ये बिल जो है ये मुल्क को बांटने वाला है, लोगों में तफरीक लाने वाला है। कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है लगातार? हाँ, देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि धर्म के आधार पर किसी तरीके का अधिकार देना या अधिकार से वंचित करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और ये संविधान का भी उल्लंघन है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो समानता का अधिकार, धर्म के नाम पर जो समानता का अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा रहा है और ये बिल जो है विशेष परिस्थिति में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के लोग हैं जो भारत में आए, उनको अधिकार देने की बात कहता है। इसमें किसी तरीके से मुसलमानों को किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो देश में हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उनको जो अधिकार भारत में मिला हुआ है वो अधिकार आगे भी मिलता रहेगा। अगर भारत से बाहर से अगर कोई मुसलमान आता है और एक प्रक्रिया के तहत उन्हें नागरिकता चाहिए, वो नागरिकता मिलेगी। ये जो बिल है केवल और केवल उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है जो
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर देश में आए हैं और देश में वो जी, अधिकार तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर्स से भी वहाँ का हालात जो है, वहाँ के हालात वो जान रहे हैं। आपको बताएं कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर बहस जारी है और ये अहम खबर है कि टीआरएस ने इस बिल की मुखालिफत की है, जबकि जेडीयू ने शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब जो एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ लगातार एहतजाज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी है, उस पर भी नज़र हमारी बनी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल जमहूरियत के खिलाफ है। वहीं टीएमसी लगातार इस बिल की मुखालिफत करती आ रही है। टीएमसी के तमाम लीडरों का यही कहना है कि हिंद और बंगाल मुखालिफ है ये। और AIADMK, BJD और अकाली दल ने इस बिल की हिमायत की है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर बहस जारी है। अमित शाह का ये कहना है, जब उन्होंने ये बिल पेश किया राज्यसभा में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल लाखों मजहबी मुनाफरत के शिकार अफराद के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। मुसलमानों को इससे हरगिज़ भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है।